Good morning students. Welcome once again in Eclavia International Online Classes. In the previous lecture, due to some voice problem, you are not getting the words which I am giving you at the board, and I am telling you about the structures of the carbon compounds. So today we are going to revise the last video lecture, and in the last video lecture we have taken two topics, electron data structure and different kinds of structures. In the electron data structure, alkene series I already have completed, and most of the students have really understood about that. But in alkene series and alkyne series, most of the students are facing some problems. So today we will take one example of alkene series and alkyne series member to formation of electron data structure. First we are going to take alkene series. I am taking here structure of propene. Before the starting of electron data structure, let's consider the terms molecular formula, electron data structure and structural formula. First is molecular formula. For the formation of molecular formula, you will use carbon number and suffix of the member. Means prop n is equals to 3, and according to ene means alkene series, you will use CnH2n formula for the formation of molecular formula of propane. Formula will be C3H6 according to CnH2n. Now second is structural formula. For the formation of structural formula, first you will consider how many carbons are given in the formula. 3 carbons are given here. So first write the 3 carbons with the single bond. After it, suffix. What is given? Ene means alkene series, and in the alkene series we will use double bond because alkene series have the suffix as a ene. So double bond, यहाँ पे double bond जब आप use करेंगे, then you will choose the position at the corner. उसमें दोनों ही corners पे हैं, तो किसी भी कार्बन पे आप क्या कर सकते हैं, double bond use कर सकते हैं. After it, you will satisfy all the valencies of the carbon with the help of hydrogen. As you can see, at the corner of carbon, double bond is existing. So 2 rest valencies are for this carbon. Second carbon, 3 valencies already completed, so 1 is left, and at this corner you can see only 1 valency is completed, so 3 valencies are rest. This is the structural formula for the propane. Now electronic formula, or you also may call it as an electronic dot structure. After the formation of a structural formula, it is much easier to form the electronic formula, because by this formula we can suggest the position, we can suppose the position that where will be the hydrogens, where will be the carbons, and how many electrons will be shared during it. 3 carbons are existing in it. So first make the 3 circles for the carbons with the overlapping, because here we are using covalent bonding. These are 3 carbons. Now hydrogens, at the corner 2 hydrogens, at the middle carbon only 1 hydrogen, at this corner 3 hydrogens are attaching with the carbon for the formation of single bond. Now
लुक इट हियर, कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें सिंगल बॉन्ड का. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड यू विल राइट 4 इलेक्ट्रॉन्स. फॉर द सिंगल बॉन्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. कार्बन के मिड वाले बॉन्ड्स आपने बना दिए हैं. नाउ यू विल राइट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड शेयरिंग विद द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ जब शेयरिंग करेंगे तो आपको क्रॉस डॉट यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए. इसका रीज़न है यू वांट टू डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. क्रॉस किस वाले के इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ किया है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ किया है, और डॉट आपने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज़ किया है. ये आपकी प्रोपेन की स्ट्रक्चर हो गई. ठीक है, दिस इज द मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज. नाउ इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन सीरीज. कोई भी मेंबर ले लीजिए. एक बड़ा मेंबर ले लेते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी लिया था, हेक्साइन. ज़रूरी नहीं है हेक्साइन ही बनाए, कुछ और कंसीडर कर लीजिए आप. यहाँ लेते हैं पेंटाइन. पेंटाइन के लिए n इज टू आपके पास हो गया 5 और आइन है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड यू विल यूज़. फॉर्मूला जब आप बनाएंगे तो जो एल्काइन के लिए फॉर्मूला फॉर्मेशन होता है वो होता है CnH2n-2. तो इस प्रोपाइन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H 5 to 10 10-2 कितना हो गया? 8. राइट. नाउ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चर बनाने के लिए 5 कार्बन्स राइट करने हैं विद द सिंगल बॉन्ड. फर्स्ट सिंगल बॉन्ड लगा दिया सबके बीच. आइन है मीन्स ट्रिपल बॉन्ड यूज़ करना है. बट वेयर वी विल राइट द ट्रिपल बॉन्ड? आपको मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि एट द कॉर्नर यू विल राइट द ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड. उसका रीज़न बताया गया था पिछले वीडियो लेक्चर में, बट ड्यू टू सम इंटरप्शन ऑफ द वॉइस यू आर नॉट गेटिंग राइटली. तो आपको कॉर्नर पे लगाना ज़रूरी क्यों होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को? उसका रीज़न है कि जब आप कॉर्नर पे लगाते हैं तो जब पोजीशन दी जाती है किसको? डबल बॉन्ड को, आइन या फिर इन को, तो वो 1 होती है. और 1 के लिए आपको यहाँ पे नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 पेंटाइन लिखिए या फिर पेंटाइन लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेकिन अगर आप इस कार्बन के ऊपर डबल या ट्रिपल बॉन्ड को यूज़ करते हैं तो पोजीशन चेंज हो जाएगी. फर्स्ट की जगह अब आपको सेकंड पोजीशन पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है. तो आपको पेंटाइन लिखने की बजाय आपको नेमिंग क्या करनी पड़ेगी? 2 पेंटाइन करनी पड़ेगी या 2 हेक्साइन करनी पड़ेगी. जो भी आप मेंबर बना रहे हैं उसको नंबरिंग देना ज़रूरी हो जाएगा. या फिर आपको पैंट 2 आइन लिखना पड़ेगा कि आइन की पोजीशन किस कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे. ये नॉमेनक्लेचर अपने है नहीं, तो आपको बेस्ट मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही है कि जब भी आप एल्कीन या फिर एल्काइन बना रहे हो, इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हो और कोई भी मेंबर बना रहे हो एल्कीन या एल्काइन का, तो जस्ट प्रेफर द कॉर्नर पोजीशन. किसी भी कॉर्नर पोजीशन पे आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड को यूज़ करेंगे. तो पेंटाइन के लिए अपन ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं तो कॉर्नर पे लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड. अब आपको वैलेंसीज कंप्लीट करनी है. कार्बन की 3 वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीट है यहाँ पे. 1 वैलेंसी इज लेफ्ट, तो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए. इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो ऑल 4 वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीटेड. टेट्रावैलेंट होता है कार्बन, 4 वैलेंसी ही होनी चाहिए एक कार्बन के ऊपर और इसके 4 वैलेंसी कंप्लीट है. नाउ द सेकेंड वन, 2 valencies already completed, 2 is rest, 2 already completed, 2 is rest, 1 already completed, 3 is rest. ये आपकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की स्ट्रक्चर हो गई. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन.
for the interruption. After the molecular formula, we will do structural formula. During the structural formula, first we will take 5 carbons. After the 5 carbons, we will complete its valency with the hydrogen, but first we will write triple bond. किसी भी कॉर्नर पे लगा सकते हैं, इस कॉर्नर पे लगा सकते हैं, उस कॉर्नर पे लगा सकते हैं। अब आपको वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। इसकी 3 वैलेंसीज कंप्लीट है तो इसकी 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी। इसकी ऑलरेडी 4 कंप्लीट हो चुकी है। इसकी रेस्ट है 2, इसकी भी रेस्ट है 2 और इसकी भी रेस्ट है, वो कंप्लीट कर देंगे विद दी हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी बनानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कोई मैटर नहीं रखता, एक ही जैसी होगी वो सारी, एक ही के लिए अपन सारी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट 5 कार्बन्स के लिए 5 सर्कल्स करिए। और इन 5 सर्कल्स पे अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन अटैच करने हैं। इस पे 1 ही होगा तो आप इसको लीनियर ले लीजिए। साइज थोड़ी छोटी ले लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हो गया आपका, पहले इनको राइट कर लीजिए, कार्बन 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 एंड कार्बन। हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन हो गया, इस पे कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इस पे 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, इस पे भी 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं और इस पे 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। ठीक है, अब आपको फिल करने हैं बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, आप इसको शेयरिंग करवाएंगे। बाकी सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंटिंग इन ऑल कार्बन्स बिटवीन द कार्बन्स। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड हो गए सबके। अब हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, बट नाउ वी विल यूज डॉट एंड क्रॉस, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। ये लीजिए, ये आपकी स्ट्रक्चर बन गई पेंटाइन के लिए। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसमें 3 टाइप्स की अपन ने स्ट्रक्चर्स देखी थी प्रीवियस वीडियो में, चेन, ब्रांच्ड और रिंग स्ट्रक्चर। चेन अब तक अपन करते आ रहे हैं, कार्बन अगर दूसरे कार्बन के साथ सीक्वली एक के बाद एक जुड़ा होता है, एक लीनियर इक्वेशन बनाता है, एक लीनियर पेयर बना लेता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, चेन स्ट्रक्चर कहा जाता है। बाकी वैलेंसीज किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से। ठीक है, ब्रांच्ड में क्या होता है, जब चेन फॉर्म में कोई कार्बन होता है और जब वो किन्हीं 2 कार्बन्स के साथ फर्दर अटैच हो जाता है, तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कहलाती है। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेसिफिक बात है वो ये है कि कई बार बनने वाले मेंबर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है
और उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफर बन जाती है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम और स्ट्रक्चर बन जाएगी डिफर, और ऐसे दोनों मेंबर्स को क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाएगा। ये स्पेसिफिक नोटिफिकेशन जो है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर का वो ये है। और इसके अंदर अपन एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन जो होता है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, C4H10 फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का। इसके लिए आप दो तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, चेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं और एक बना सकते हैं इसकी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। देखिए ये चेन स्ट्रक्चर बन गई, ब्रांच में 4 कार्बन्स इस तरह से अटैच कर लीजिए, इस पर 3 कार्बन्स आ जाएंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, इस पर 1 हाइड्रोजन कार्बन में हाइड्रोजन वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे, और इस पर 1 हाइड्रोजन, इस पर रेस्ट 3 हाइड्रोजन्स, और इस पर भी 3 हाइड्रोजन्स। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, 3, 3, 6 और 4 10, हाइड्रोजन 10 है, कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन्स देखिए 3 3 और 3, 9 9 और 1 10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफर है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहा जाएगा दोनों को। आइसोमर्स बेसिकली होते क्या हैं? आइसोमर स्ट्रक्चरल है, इसका तो पता चल रहा है कि दोनों की स्ट्रक्चर डिफर है, बट आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे कार्बनिक कंपाउंड मेंबर्स जिनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but physical properties are differ in them, that substances, that members, that carbon compounds are known as isomers. तो structural isomers means इनकी chemical properties same होगी but इनकी physical properties differ होगी। वो तो दिखाई दे रहा है, बाहर से देखने पे जो दिखाई देता है वो physical property होती है, तो बाहर से इनकी structure दिखाई दे रही है वो differ है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? isomers हैं। और कैसे isomers हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ठीक है, लास्ट है आपके रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर का मतलब है एक साइक्लिक फॉर्म, यानी फर्स्ट कार्बन अगेन अटैच विद द लास्ट कार्बन। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक फॉर्म बनेगी कार्बन कंपाउंड्स की, और इसके लिए जो अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो CnH2n होता है, सिमिलर टू दी एल्कीन्स, बट इनका नेमिंग जब करते हैं तो इनके आगे लिखा जाता है साइक्लो वर्ड, और बाकी नेमिंग होती है जस्ट लाइक द एल्केन सीरीज, जैसे कि साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो नेमिंग होती है वो साइक्लो है, बट पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन जो ये यूज़ कर रहे हैं वो एल्केन सीरीज से सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है? फॉर्मूला तो है CnH2n, और इसका जो नेम है वो मैच कर रहा है एल्केन सीरीज से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न है, देखिए 5 कार्बन, जैसे ब्यूटेन की ही बात कर लें, 4 कार्बन्स की एक रिंग बन रही है और 4 कार्बन्स की रिंग साइक्लिक फॉर्म में बन रही है। तो इसका फॉर्मूला CnH2n क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है
कि अगर 4 कार्बन्स इस तरीके से आप एक चेन फॉर्म में लिखते तो एक हाइड्रोजन यहाँ होता, एक हाइड्रोजन यहाँ होता, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स इस कार्बन को इस कार्बन से अटैच करने की वजह से, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ठीक है। तो ये जो आपने 4 कार्बन्स लिए हैं वो जब आपस में ही अटैच हो जाते हैं, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन, तो इसकी ये वैलेंसी और इसकी ये वैलेंसी, ये दोनों क्या हो गई, लैप्स हो गई। लैप्स हो गई मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कम हो गया। कितने हाइड्रोजन्स कम हो गए, 2 हाइड्रोजन्स कम हो गए। तो जो फॉर्मूला क्या था आपका CnH2n+2, तो ये दोनों कार्बन्स क्या हो गए, लैप्स हो गए, यानी खत्म हो गए। तो फॉर्मूला किससे मैच हो गया, एल्कीन सीरीज से, जबकि लीविंग किससे मैच हो रही है आपकी, एल्केन सीरीज से। अब देखिए इसका अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट करें तो इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए 2 वैलेंसीज ऑलरेडी कंप्लीटेड है कार्बन की, बाकी रही 2 वैलेंसीज और, तो हर एक कार्बन पे 2 वैलेंसीज और लिख दीजिए। ये बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन। ये थोड़ा सा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, उसका रीज़न है कि इसमें हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, और पास आने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, और रिपल्शन होने की वजह से ये थोड़ी अनस्टेबल कंडीशन आ जाती है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो देखिए किस तरह से बनेगी। 4 कार्बन्स आपस में अटैच्ड हैं विद दी ओवरलैपिंग, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पे भी आपको 2 हाइड्रोजन्स अटैच करने पड़ेंगे। देखिए थोड़ा सर्कल से ही पता चल रहा है कि बहुत पास स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन्स की, H H H H, और बीच में हैं सारे कार्बन्स C C C एंड C, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करवाओगे तो डॉट क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। ये होगी आपकी रिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, साइक्लोपेंटेन बनाना है, साइक्लोहेक्सेन बनाना है। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12 हो जाएगा। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझे क्वेरीज भेज दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे। हाँ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक और चीज़ लेनी है, रिंग के अंदर अब तक अपन ने करा है सैचुरेटेड वाला, इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर में अपन एक और एग्जांपल लेंगे अनसैचुरेटेड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन, जो कि आपको सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो भी अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। डन, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो चेन, ब्रांच, रिंग, अब आज का ये वर्क कंप्लीट है। आज का वर्क जो है वो आप साइक्लोपेंटेन बना के देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन बना के देखेंगे, और भी बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, साइक्लोऑक्टेन भी बन जाएगा, साइक्लोहेप्टेन भी बन जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ में आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे एल्कीन की भी और एल्काइन के मेंबर्स की भी। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपन क्वेरीज आप मुझे सेंड करिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उनको इंक्लूड करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।